So firstly we have to read the question and we have to find out the solution of the particular problem, right? So it is our target, so we have to focus on the questions, right? For solving any question, firstly we have to read the question perfectly, and before that we have to gather some information from our questions, so that we can analyze the questions and what type of algorithm should be considered for the particular problem, right? The question is something like this, which is the smallest value after replacing with sum of prime factors. So the question is you are given a positive integer n, continuously replacing n, यानी कि n की वैल्यू जो है it will replace continuously, right, with the sum of the prime factors. Here the note is that if prime factor divided by n multiple times, okay, so when n is divided in multiple times, then it should be the included in the sum as many time as divided n. n जितने टाइम उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा वो सारे नंबर सम के अंदर ऐड होने चाहिए, राइट? देन आफ्टर दैट रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू n will take on. यहाँ से एक एग्जांपल देखो, आपके पास n की वैल्यू गिवन है 15 एंड आउटपुट इज 5, राइट? So initially n is equal to 15, and then what is prime factorization of the 15? 3 into 5, right? Then we have to replace the n values, which is the 3 plus 5, यानी कि 3 plus 5 8 हो गया. So we have to replace the values with the 8, राइट? तो n की वैल्यूज 8 हो गई. व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8? देन 2 into 2 into 2. वी हैव टू रिप्लेस द नंबर्स विद द n. व्हाट इज द n's वैल्यूज? 2 plus 2 plus 2, यानी 6 की वैल्यू हमें n से अपडेट कर देनी. सो व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द n? सो वी हैव टू रिप्लेस द n's वैल्यूज with the 2 plus 3. 2 plus 3 क्या हो गया आपका? 5 हो गया. देन वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू विद द n की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई. 5 is the smallest value n will take on. So there is no any type of the prime factorization of n, so we cannot divide 5 value with the any prime factor, so we cannot divide this value. So then we have to return the 5. So 3 is the only can be divisible by 3, so we have to return the 3. Okay, right? So for the solving this particular problem, we have to understand what is the prime factorization. We already know that what is the prime number. So prime numbers की वीडियो मैंने already बना चुके हैं, and if you are not seen those video, then you can go check out those video. So prime number is 2, 3, 5, 7, 11, 13. These are the prime numbers. 3 into 5, it is 15. Then we have replaced the n value 3 plus 5, which is the 8. So n की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी. अब 8 के हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि होगा 2 into 2 into 2. So we have to replace the with the 6. And 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 into 3. We have to replace the n values with the 5. Smallest value है, and then we have to return this number, which the answer is the 5, right? So firstly we have to think about the how to find out the prime factorization. For finding the prime factorization, as we know that prime numbers is the 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on, right? I mean 2 जो है वो हमारा इवन नंबर है. 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स मिलते हैं वो हमारे किस पोजीशन पे मिलते हैं? वो ऑड पोजीशन पे मिलते हैं, राइट? लाइक हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि एक प्राइम सम निकाल के दे रहा है. इसमें कोई वैल्यू मैंने दिया एंड ये जाएगा प्राइम फैक्टर्स का सम है उसको निकाल के देगा. 15 3 into 5, तो ये सम निकाल के देगा 3 plus 5 देंगे. जो लूप चलेगा वो हमेशा ट्रू रहेगा, राइट? आपको एक न्यू n मिल रहा है, एनोनिमस फंक्शन मान लेते हैं कि वी हैव टू राइट द फंक्शन कोड आफ्टर दिस. n इज इक्वल टू अगर 15 दिया हुआ है तो हमको इस 15 को अपडेट करना था, लेकिन हमको रुकना कब? ऐसा हो जाता है कि जो n की वैल्यूज है वो हमारी न्यू n के बराबर आ जाती है, राइट? यहाँ से आप रुक जाओगे. अगर ये हमारा काम नहीं होता, न्यू n से अपडेट कर देंगे n की जो वैल्यूज हो गई. तो हमने ये तो प्रोग्राम लिख लिया. अब रही बात प्राइम फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे, उसको हम देखते हैं कि लाइक सबसे पहले आपके पास एक सम तो होना ही होना है. 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो अगर देखोगे आप इन सबके बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो 2 का होगा. इसके बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस, इसके बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है, वो हमारे ऑड नंबर से ही स्टार्ट होते हैं. बट ये हमारा 2 हमारा एक प्राइम नंबर है. फिर नॉर्मली एक लूप चला दो, जब तक आपकी n की वैल्यू 2 से डिवाइड होती है तब तक ये लूप चलाते रहो. 2 को आपको ऐड करते हुए चले जाना जब तक आपकी n वो 2 से डिवाइडेड होती है. इस n को मिनिमाइज भी करना है. n डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे. ये तो काम हो गया कि जब तक आपका 2 से डिविजिबल है. लेकिन ऐसा केस हो गया कि अब आपका जो नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं होता. इस 2 के लिए आपने हैंडल कर ली. बट व्हाट अबाउट द 3, 7, 8? वो जो लूप चलेगा वो हमारा ऑड नंबर से स्टार्ट होना है. स्क्वायर रूट तक आप चलाओगे तब भी काम चल जाएगा यहाँ से, राइट? 1 1 बढ़ाने की जगह पर आप यहाँ से +2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं. जब तक आपका नंबर यानी कि 3 हो सकता हो कि 3 से मल्टीपल टाइम डिवाइड हो सकता है. सबसे पहले जब तक आपका नंबर जो है डिवाइडेड नहीं, i क्योंकि i की
वैल्यू हमारी बढ़ेगी तो अगली बार 5 होगी, फिर 7 होगी, तो हमने यहाँ पे i लिख दिया। एज मेनी टाइम एज इट डिवाइडेड n, वो हमारा सम में ऐड होता चला जाएगा। देन n को मिनिमाइज भी तो करना था, डिवाइडेड बाई i कर देंगे। अगर हो सकता हो कि भाई आपका जो नंबर है वो नंबर हमारा डिविजिबल ही ना हो, n की वैल्यू है वो हमारा ग्रेटर देन 2 बची हुई है सम के अंदर, उस n को ऐड कर दो एंड एट द एंड आपको यहाँ से रिटर्न कर देना, राइट। सबसे पहला काम यहाँ से आप लूप चलाओगे, लूप चला दिया आपने, ट्रू कर दिया, राइट। देन आपको यहाँ पे एक न्यू n मिलता, pf सम फंक्शन बना दिया जो कि हमारा न्यू n। देन वी हैव टू चेक द आवर न्यू n इज इक्वल टू n। अगर ऐसा केस हो जाता है तो यहाँ पे ब्रेक हो जाओ, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। मिनिमम नाम का वेरिएबल ले लो, वो n मैक्सिमम वैल्यूज को डाल दो। मिनिमम फंक्शन है जिसके थ्रू हम मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे, वो मिनी में से या फिर न्यू n से, इसमें से जो मिनिमम है वैल्यू को वो n में डालता हुआ चला जाएगा। यू हैव टू रिटर्न कि मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन की लिखने की बात है तो इस फंक्शन को चलते हैं लिखते हैं। सो वी हैव द रिटर्न टाइप इंटीजर, टेक द आर्गुमेंट इज इंटीजर विच इज द n। फर्स्टली वी हैव टू टेक द सम वेरिएबल विच इज द सम, सम को मैंने ले लिया। देन वी हैव टू राइट द व्हाइल इज द ट्रू, जब तक कि आपका n की वैल्यूज जो डिवाइड नहीं कर देती है 2 से, और वो जब तक डिविजिबल होती है 2 से, तब तक ये चलते रहना है। आई मीन सम इज एडेड द वैल्यू विद 2, नम विल मिनिमाइज बाय 2। अगर आपका 2 से नहीं वो 3 से, यानी कि ऑड नंबर से वो नंबर डिविजिबल होता है, देन i लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, बिकॉज ऑफ आपको हाफ नंबर तक ही जाने हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट तक आप उसको चला सकते हो, राइट। सो यहाँ पे i की वैल्यू अपडेट कितनी करनी है, i की वैल्यू 2 से अपडेट करनी है क्योंकि ऑड नंबर्स पे ही हमारे सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, राइट। सो हर एक नंबर के लिए, हर एक इंडिविजुअल नंबर के लिए वी हैव टू चेक द मल्टीपल टाइम ऑफ डिविजिबल और नॉट। अगर मल्टीपल टाइम डिविजिबल है तो यहाँ पर आपको सम में उसको मल्टीपल टाइम ऐड करते हुए चले चलना है, राइट। n शुड बी अपडेट विद द n डिवाइडेड बाय i। ऐसा होता है कि n की वैल्यू रिमेनिंग बचती है तो उस टाइम आप सम में n को ऐड कर देना है एंड देन सम की वैल्यू रिटर्न कर देना है। I think we have to check it will accept it or not. So it will accept the all test cases. So we have to click on the submit button. So let's see it will accept or not. सो इट विल एक्सेप्टेड, राइट। तो आपको ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलाने एंड ये फंक्शन मैंने बनाया, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा प्राइम फैक्टर्स का सम निकाल के लाएगा एंड देन उसको बस नॉर्मली चेक कर लेना है कि वो नंबर्स, जो नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि n को जो मैंने भेजा था वही नंबर अगर हमारे न्यू नंबर्स के इक्वल हो जाता है तो इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर। अगर नहीं ऐसा होता देन वी हैव टू अपडेट दिस n। और ये जो ऊपर फंक्शन मैंने लिखा है pf sum, so it will give the our sum of all prime factorization. So and end of the day we have to return the minimum values from them. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।